Good morning, students. Today I will further continue the third chapter of Geography. Conservation of Minerals. खनिजों का संरक्षण. Minerals are a non-renewable resource. It takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. खनिज अनवीकरणीय संसाधन है. खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं. The rate of formation is much smaller than the rate at which the humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of metals is another way in which the mineral resources can be conserved. मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है. खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना, धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है. पावर रिसोर्सेस, शक्ति संसाधन. शनीज मदर begins her day by switching on the geyser. शनी की माँ अपने दिन की शुरुआत गीजर का बटन दबाने से करती है. She irons Sunny's school uniform before waking him up. वह सन्नी को जगाने से पहले उसके विद्यालय की वर्दी पर ड्रेस पर इस्त्री करती है. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. इसके बाद वह उसके लिए ब्लेंडर में एक गिलास संतरे का जूस तैयार करने के लिए रसोई घर में तेजी से पहुंचती है. शनी, हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, calls out mother's while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. शनि, क्या आपने स्नान कर लिया? आओ और अपना नाश्ता करो. सन्नी के लिए गैस स्टोव पर नाश्ता बनाते हुए माँ पुकारती है. While going to school, Sunny forgets to switch off light and fans. विद्यालय जाते समय शन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है.
when mother switches them off, the things that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of his consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. तो विद्यालय जाते समय सन्नी बत्तियों और पंखों के बटन बंद करना भूल जाता है। माँ उन बटनों को बंद करते समय सोचती है कि शहरों में जीवन आरामदायक प्रतीत होता है, लेकिन विद्युत उपकरणों जो सभी बिजली की खपत करते हैं, उन्हीं पर अधिक से विशाल अंतर पैदा करती है। With the advent of science and technology, the lifestyle are changing very fast. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए प्रचलन से जीवन शैलियों में बहुत तेजी से परिवर्तन। Power of energy. Power of energy plays a vital in our lives. शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। We also need power for industry, agriculture, transport, communication, and defense. Power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। Conventional resources, परंपरागत स्रोत। Conventional resources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are the two main conventional energy resources. ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। फायरवुड यानी ईंधन, it is widely used for cooking and heating. In our country, more than 50% of the energy used by villagers comes from firewood.
इसका उपयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है और हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। Remains of plants and animals. Remains plant and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuels. पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए। Fossil fuel such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy. The reserves of these minerals are limited. जीवाश्मी ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं और इन खनिजों के भंडार सीमित हैं। The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation, so these are likely to be exhausted soon. इन खनिजों के चूंकि भंडार सीमित हैं और विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह इनके निर्माण की दर से अधिक है। इनके निर्माण की दर से अधिक है और इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। कोल यानी कोयला, दिस इज द मोस्ट abundantly फाउंड फॉसिल फ्यूल। यह बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines, and to generate electricity. इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant herons and swamps go
buried under the layers of earth. Coal is therefore referred to as कोयला, जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं। वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ब्यूरेड सनशाइन। The leading coal producers of the world are China, USA, Germany, Russia, South Africa and France. विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। The coal producing area of India are Raniganj, Jharia, धनबाद and बोकारो in झारखंड। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिमी बंगाल में तथा झरिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में हैं। पेट्रोलियम यानी पेट्रोल, पेट्रोलियम, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वेकिंग, both vegan as a thick black liquid called petroleum. पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चमकाने में पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर द एंड कोस्टल एरियाज। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। दिस इज देन सेंट टू रिफाइनरीज which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastics and lubricants. उसके बाद तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है जहां अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रमण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स derivatives are called black gold as they are very valuable.
पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। The other major producers are USA, Russia, Venezuela, and Algeria. पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश इराक, ईरान, सऊदी अरब और कतर हैं। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुला और अल्जीरिया हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। थैंक यू।